Assalamu alaikum. I hope everyone is doing good. सब खैरियत से हैं. I'm here today live with the Nastian USA chapter and Anam would be joining us. Let's see if Anam is here. I hope सब खैरियत से हैं. Hello, Assalamu alaikum to everyone. So today I'm here to talk about NUST. I'm a graduate from NUST and we will be talking a lot about NUST and NUST scholarship programs today. Hello. Hello. Assalamu alaikum. How are you? So good to see you after so long. I think हम सिर्फ live sessions में बात करते हैं. Yeah, this is so true. Like, and so good to see you as well. Alhamdulillah, I'm good. How are you? सब बिल्कुल ठीक ठाक. हम NUST के कौन से कॉर्नर में बैठे हैं आज? Yeah, और भाई I have so much respect for you because ये Insta live जो है ये मैं आज experience कर रही हूँ for the first time and it's not easy. No, मतलब this has brought world so much together. Like it is so easy. अब आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए easily talk to each other. Yeah, that's true. But in मतलब जो bloggers आप लोग रोज करते हैं, I think that takes a lot of effort and time and courage. Yeah, ये तो एक है. This is I would not disagree to this. कि there's a lot of मेहनत in this कि जो everyone who is producing content on social media बहुत सारी effort लगती है. But on the same end, you are doing a tremendous job with NUST Association जो US chapter है. Tell us about that. Thank you so much for appreciating. So basically, Nastian जो है, it's a 501c3 non-profit organization. For all those who don't know, मैं और Anam NUST के graduates हैं. Anam was my junior there, and then we worked together at Seeks, NUST Seeks. हम लोगों ने इकट्ठे काम किया for the alumni office. फिर Anam went to IBM. Yeah. And then she got married, I got married. फिर मैंने food blogging शुरू कर दी, and Anam moved to US. Now we both are in US, and Anam is running she's general secretary for the NUST USA chapter. And today we are going to reconnect all our memories about NUST and talk about this fundraising campaign जो NUST के US chapter जो run कर रहा है. So yes, Anam. Oh, thank you so much. And I would like to add कि फातिमा बाजी जो है वो शुरू से हमारी favorite seniors में से है. We always knew कि we could depend on her. हम अपना हर मसला हर कुछ लेके उनके पास frankly जा सकते हैं, and she would always help and always say yes to whatever we demanded from her. So thank you so much, Fatma Baji, for letting me join you today. Sorry, आपकी आवाज कट गई थी. मैं कही थी apart from wearing short shirts, उस time पे NUST में short That is so true. लेकिन अब अगर looking back, I think वो भी एक अच्छा ही था because वो वाली pictures कुछ हमारी weird ही है. तो खैर, talking about Nastian USA, तो I would like to tell people that Nastian USA is a non-profit organization registered in US. जो कि NUST students को help करती है, underprivileged students को, in paying for their tuition or hostel fee, and also it's not only about the financial help only. उनको जो है बहुत ज़्यादा how they can apply for masters or PhD in US, उनकी mentoring, उनकी career counseling. So there's a lot that we do. लेकिन जो बात Nastian को special बनाती है वो ये बात है कि there are so many non-profit organizations जो कि पाकिस्तान में education sector में काम कर रही हैं, and they do a lot of fundraisers in US. They are registered in US. लेकिन Nastian is the only unique organization that supports professional education in Pakistan.
बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सेकेंडरी लेवल या हाई स्कूल लेवल एजुकेशन को सपोर्ट करती हैं किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम को. यस. या सो मतलब एक जो डिजर्विंग स्टूडेंट है जो कि हाई स्कूल कर लेता है, प्राइमरी कर लेता है, हाई स्कूल कर लेता है, एंड व्हेन ही कम्स टू यूनिवर्सिटी लाइक नस्ट, तो उस वक्त आई थिंक उनको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए बिकॉज प्रोफेशनल एजुकेशन से उनकी और उनकी फैमिली की ज़िंदगी बदल सकती है. So this is, I take a lot of pride in it because this thing has the potential to change a lot of things in Pakistan. हम लोग हमेशा जो है वो पाकिस्तान के इश्यूज पे बात करते हैं और a lot of times we crib के ये नहीं है वो नहीं है, but I believe that पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज का जो solution है वो education ही है. और education जो है not only at the school level but at the professional level, so that more people are educated, they get degrees and they work and they change the fate of their families and everyone else. Yeah. So And this is, we have worked in NUS for so long and we have seen कि इतने सारे students remote areas से आते हैं and they are so competitive और इतने अच्छे होते हैं पढ़ाई में, but when they join in they face a lot of financial stress and they are burdened, they want to support their parents. So these scholarships help a lot. A lot of students are helped by these scholarships. So, and then the universities, they can't run on their own. They're always dependent on financial supports from alumni, their friends, different organizations जो universities के अंदर put in करती हैं endowment. So I was really, really happy when all these scholarship programs started in NUST, and इतने students को हमने देखा है जो they have done tremendous job when they were free from the financial burden from the university, जो help कर दिया गया जब वहाँ से उन्हें. And university के अंदर जो processing है for selecting the students के किन बच्चों को scholarships मिलनी चाहिए, that is also very, very good. We have been part of the alumni scholarship program also, and हम सिर्फ 5-6 लोग ही होते थे, but we would do every possible research कि is this the right person जिसको ये scholarship मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग apply करते हैं, but the process for selecting the right candidate is also very, very in-depth and detailed. So I think the whole effort and the whole program is really good. Yes, that is true. फातिमा जी, किसी ने लाइव में क्वेश्चन पूछा है कि what is NUST, उनको नहीं पता, तो for that person I would like to answer कि NUST is one of the top universities of Pakistan and it offers 131 programs which includes engineering, business administration, architecture, design. There are lots of disciplines. Every field is there in this university. Yeah, every field is there. University of Sciences and Technology, NUST, and it is one of the leading universities in Pakistan. The campus is in Islamabad and Karachi also, and दूसरा कहाँ है, Rasalpur में. So Rasalpur में. Yes. Yeah, and now we have a campus in Balochistan as well. Oh really? Yeah, we have a campus in Balochistan, and which is amazing. Wow, this is awesome. Yes. और एक और बात जो आपने शुरू में की, I would like to add on to it, कि ना सिर्फ बहुत सारे students जो हैं वो हमारे पास remote areas से आते हैं, बल्कि वो students जो हैं वो all over पाकिस्तान के toppers होते हैं. Because जो NUST का acceptance rate है, it's only 4%. So 4% of, thousands of applications. So it's the cream of Pakistan. और अगर वो बच्चे इतने ज़्यादा capable हैं that they are the toppers and they get selected in that 4%, तो I think हम इतना कर सकते हैं कि उनमें से कोई भी बच्चा जो है वो सिर्फ financial constraints की वजह से अपनी डिग्री को ना छोड़े. हम उनको इतना help out करना चाहिए हमें. And yes, and I think कि हम ये effort being an alumni इसलिए भी put in कर रहे हैं क्योंकि when you graduate from a university, तो उस student के ऊपर एक responsibility आ जाती है. They need to give back to the university also. University ने आप पे invest किया है. Obviously आपने fees वगैरह सब कुछ दी होती है, but university has put in a lot on you. आपकी development में, आपकी personality, आपकी education. And then there comes a time that university needs your support also. And these are the small gestures that we can do. चाहे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं,
there comes a time that university needs अपने बच्चों की जरूरत होती है जब यूनिवर्सिटी ग्रो करती रहती है. So I think this is a way we can return back to our university जिसने हमें, like we are sitting here, we are something, we have achieved so much in life कि I think this is a part of us that we also need to give back to the school जिससे हम पढ़ के आए होते हैं. Yes, true. और हम असद ने कमेंट किया है. I would like to say thank you for reminding me कि रिसालपुर और कोयटा में भी कैंपसेस हैं हमारे. तो thank you असद for telling me that. और जो आपने बात की about giving back, तो I would like to say कि जिन स्टूडेंट्स की हम हेल्प करते हैं वो ऐसा नहीं है कि when they graduate they don't give back. Yeah. Or when they become people, they don't give back. It's a cycle. We help some students, and when they graduate, they give back. एक example मैं दूंगी कि there was this student. अभी कल ही we were having another live session with the UAO office NUST, और उसमें हमें पता चला कि there was a student who needed financial help because उसके अबू जो हैं वो किसी छोटे गांव में एक शॉपकीपर थे. So he couldn't pay for his fee. Yeah. So he was selected for this scholarship and he was given the opportunity कि उसको financial constraints में कुछ भी ना देखना पड़े. And after that, he promised, when he graduated, he promised that I'm not going to get married until and unless I create an endowment seat at NUST. और endowment seat का मतलब मैं यहाँ आपको बताती चलूँ सबको. It means that he donated 3 million Pakistani rupees to NUST, so that so that someone else could study for 4 years without worrying about the financial thing. No, this is huge. As I say कि हम लोग चूंकि उस सिस्टम में से हो के आए हुए, we have seen the processes, the policies, वहाँ पे बच्चे कैसे कितना strain हो जाता है at times, और आपकी इमोशनली आप कितने स्ट्रेस आउट होते हो कि आपकी पढ़ाई इफेक्ट होना शुरू हो जाती है अगर यू आर नॉट एबल टू पे द फीसेस ऑन टाइम, या आपके पेरेंट्स आर अनएबल टू कोप अप विद द एक्सपेंसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी और योर चाइल्ड लिविंग अवे फ्रॉम देयर ओन टाउन. तो इट इज टू मच मेंटली ऑल्सो. तो आई थिंक, और फिर बहुत सारे केसेस भी हमने देखे ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि डिफरेंट छोटी छोटी चीजों के ऊपर से बच्चे कितना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. दे आर नॉट एबल टू deliver good in the padhai also. Yes. So I think this is an excellent effort by NUST office in Pakistan also, and what all you guys all doing here in NUSTian chapter in US and Canada. This is truly commendable. Thank you so much. And also I would like to add कि हम लोग जो हैं हम बहुत एक छोटी सी एफर्ट के साथ उनकी पूरी लाइफ की जो स्टोरी है उसको चेंज कर सकते हैं. सो do not think that any donation is small. No donation is small. Every dollar counts. Even if you can just give $10 right now, $20, it would make a huge difference for them. Because हम यहाँ पे US में, especially जो लोग US में देख रहे हैं, हम लोग के लिए $10 या $20 is nothing. It's like one time food for us. If we go outside, we get a coffee and a bagel, it would be $10. Yeah. So I would suggest everyone that please, अभी रमजान है और especially right now बहुत ज़्यादा हमें donations की ज़रूरत है because COVID चल रहा है. Last year COVID ने हमें बहुत ज़्यादा impact किया students को. We received more applications than we usually receive. और इस साल unfortunately Pakistan is facing the third COVID wave. अल्लाह करे कि we are able to get out of it soon. लेकिन उसने लोगों को financially बहुत ज़्यादा hit किया है. तो I think right now it's very important कि हम donate करें ताकि इन बच्चों की पढ़ाई ना रुकने पाए. बिल्कुल. Everyone, whoever is listening, आप अपने friends, family, अपने colleagues के साथ share करें. If anybody wants to donate to the NUST scholarship program, it is an amazing opportunity कि आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं by supporting his education.
वी विल शेयर द डिटेल्स के वो आप किस किस तरह पे कर सकते हैं, किन अकाउंट क्या अनम किस तरह है कि आप किसी का फुल ट्यूशन दे सकते हैं या वो मैं बता देती हूँ. अब मैं अभी नस्टियन यूएसए के अकाउंट से लाइव हूँ. इफ यू गाइज गो ऑन दिस अकाउंट यू विल सी द लिंक इन द बायो. दैट इज आवर वेबसाइट लिंक. हमारी वेबसाइट के ऊपर आप डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं विद अ क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड और पेपैल. और उसके अलावा जो है आप हमें फेसबुक फंडरेजर में भी पैसे दे सकते हैं. और उसके अलावा इफ़ यू आर वर्किंग इन यूएस इन सम कंपनी जो कि डोनेशन मैचिंग करती है तो आप उसके थ्रू भी हमें कर सकते हैं डोनेशन. और डोनेशन जो है वो मैं सॉरी आपकी आवाज़ ड्रॉप होगी. सॉरी मैं कह रही थी आई विल शेयर ऑल दीज डिटेल्स ऑन माय स्टोरीज आल्सो एंड लिंक इट टू द नस्ट की वेबसाइट को जो लिंक आप बता रहे हो. यस दैट वुड बी ऑसम. और इसके अलावा मैं बताती चलूँ कि एक स्टूडेंट की जो मंथली ट्यूशन फ़ी है, मंथली ट्यूशन फ़ी प्लस हॉस्टल फ़ी, that is equal to $175. So you can contribute $175 per month or once if you want to do. We also have an option of making recurring payments on our website. So अगर आप $10 per month, $20 per month, or if you want to support a student per month, you can do $175 per month as a recurring payment option. और वो एक student को completely support करेगा. And also you can, if you want to give the donation in like a full lump sum, तो आप वो भी दे सकते हैं 1,000. और if you want to support a student for 4 years, you can pay $10,000 and it will support the student for full 4 years, including their hostel dues. That's awesome. So बस ढूंढ लें आपने किस किस को पकड़ना है कि वो ना नस्ट की डिटेंशंस के लिए आ जाए. Meanwhile, going to bake some brownies together also because we wanted to reconnect you to our Nust life और हम आप चाहते हैं सारे देखें कि हम सब लोगों ने नस्ट का टाइम कैसे गुजारा था. So Anam, start working. Is there anything else you want to talk about the scholarship program, Anam? I think नहीं, हम बात करते रहेंगे. If someone has any questions, we would love to answer those questions. Yes. और बाकी सब हम ये links भी share कर देंगे. So that would be awesome. And I cannot wait to see you baking brownies. So these brownies जो मैंने yesterday बनाई and मुझे कोई इतने सारे messages आ गए. And at the same time, Anna messaged me कि can you do this live session? I said let's do it कल ही यार and let's bake these brownies. ये काम साथ ही share हो जाए सबके साथ. Yeah, वो जब आपने share किया, it was so tempting, the brownies and the lemon tart. मुझे तो lemon tart की recipe भी चाहिए, so you have to share that with me. That is a recipe जिसकी video studio मैंने सब बना दी है. It is going to be shared tomorrow on Sunday. वो FM 101 के platform से it's going to be shared. So I have already done that. So for the brownies, जितना मुझे याद है, I have been baking brownies last 15, 16, 17 years से. And पहले brownies बनती थी बिल्कुल cake like texture वाली. और अब आहिस्ता आहिस्ता then you realize कि no, this is not brownie, this is just a good chocolate cake जिसको आपने थोड़ा सा चीनी डाल के enhance कर लिया. And then वो texture develop होना शुरू हो गया कि no, it has to be fudgy और आपको फिर you start experimenting with आपने butter से बनाना है, oil से बनाना है और ऊपर crackling surface कैसे चाहिए. तो all these things have bring me to this level now कि I have come to recipe जिसके अंदर to be butter also and oil also. And I've come to the conclusion that अच्छी brownies बनाने के लिए you need a good chocolate. The chocolate makes a huge difference. So as long as you have a good chocolate, cooking chocolate, not जो आपकी normal हम chocolate खाते हैं वो नहीं, जो एक अच्छी cooking chocolate होती है वो अगर आपके पास है अच्छी, तो your chocolate is going to be awesome. And we have a question. Is there a difference between zakat and endowment scholarship donations? Oh yes, a very good question. Thank you for asking. So basically आप जो है नस्ट में अपना ज़कात भी दे सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं और सदका भी दे सकते हैं. For zakat, we have a process, a Sharia compliant process through which we ensure that the student deserves zakat और हम उसके अंदर से उनको देते हैं. और जो endowment scholarship donations हैं वो आपके normal donations में से जाता है.
you can give your zakat or you can make a general donation. You will get this option when you go to the link, so you can do that. Or since it's Ramadan and it's actually आज तो 27th की night भी है, तो I'm pretty sure कि अभी भी लोग होंगे जो कि अपने donations के लिए ढूंढ रहे होंगे, especially in US, because people really give out charity during these last nights. So if you are looking for such a cause, it's a very authentic cause और हर चीज़ जो है आप हर चीज़ it's a very transparent process. आप question कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है. एंड ऑन दैट नोट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि नस्टियन यूएसए की कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, meaning that we are all professionals who volunteer for this cause. We do not take any salary or anything from Nastian USA. एक डॉलर जो डोनेट होता है, everything goes to the students. So बिल्कुल बेफिक्र होके डोनेट करें, क्योंकि आपके सारे पैसे जितने आप हमें देंगे, that is an इमानत from your side and it's going to reach to deserving students inshallah. It's just a platform जिसके थ्रू आप डायरेक्टली, क्योंकि आपको समझ हमें नई लोगों को पता चलता है कि वो नस्ट में कैसे दे सकते हैं और स्कूल कॉलेजेस में कैसे दे सकते हैं. तो दिस अलुमनाई एसोसिएशन फॉर नस्ट इज वर्किंग इन यूएस, जो कि आपके बिहाफ पे पैसे इकट्ठे करके नस्ट के एंडाउमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है. सो इट्स जस्ट अ मीडियम इन बिटवीन, which is actually very good, I think, क्योंकि किसी को ऐसे पता भी नहीं चलता कि okay now we need to give, इस तरह हम कर सकते हैं. Yes, true. And especially I think like whenever I give charity, तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि भाई I find a cause which is very authentic और जिसमें से actually किसी को फायदा पहुंचे और long term फायदा पहुंचे. Not like कि short term कि उनका मतलब even the short term is good, लेकिन if we could choose a better cause, so I would always choose something that could give someone a long term benefit. इस टाइम पे here I think actually a lot of people try to help those organizations जो कि स्कूल बिल्डिंग में या किसी तरह ट्यूशन फीस में या एजुकेशन के अंदर they are trying to help, या तो स्कूल बन जाए बच्चों के लिए, या जैसे एक एलिमेंट्री लेवल, एक मिडिल प्रोफेशनल लेवल एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट. और फिर बहुत एम्फोसिस उस पर भी आता है क्योंकि दिस इज वेयर द एक्चुअल ग्रूमिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. सो यस, एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट. स्कूल बनना भी इम्पोर्टेंट है और फिर हायर एजुकेशन होना भी उतना इम्पोर्टेंट है. I will definitely save this session. It will be on my IGTV. It will be saved. So coming back to the brownies, मैंने 1 कप चॉकलेट लिए. I have used Calabo chocolate. Calabo एक ब्रांड है चॉकलेट का which is extremely good. नाम सुन के लगता है बड़ी expensive होगी, but it is not that expensive. I was actually going to ask you that कि I've never heard about this chocolate. Yeah, it's not available at Walmart या Aldi या regular grocery stores पे. It's not available. It's available at Costco या रेस्टोरेंट डिपोज, इस तरह थोड़े बड़े स्टोर पे अवेलेबल है जहाँ से आप बल्क में ले सकते हैं. Amazon पे अवेलेबल है. So it is also available in Pakistan. And I actually got a message yesterday by somebody when I talked about this chocolate कि मैंने इसके साथ बनाई है. She said कि it's not very expensive in Pakistan also. It's economically priced and you can buy it क्योंकि इसका एक बड़ा बैग मिलता है. फिर आप रीयूज कर सकते हो इसको आराम से 3-4 महीने के शेल्फ लाइफ पे. You can easily use it. So I've used this Calabo chocolate and ये 1 cup chocolate मैंने लिया और उसमें ½ cup मक्खन लेके I have melted it. Oh, तो nice. मैंने पूरे के ऊपर दोनों को इकट्ठे डाल के आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं. महक I'll tell you later on Calabo. तो उसको मैंने मेल्ट कर लिया. इस बोल में मेरे पास 2 eggs हैं, if you can see. Okay, so I have Yes, I can see. तो मेरे पास इसके अंदर 2 eggs हैं, 1 egg yolk है और इसके अंदर शुगर है 1 कप. तो इसमें मैंने ½ कप ब्राउन शुगर लिए एंड ½ कप रेगुलर शुगर लिए. और ब्राउन शुगर इसलिए लिए क्योंकि ब्राउन शुगर एड्स मोर कैरेमली टेक्सचर टू एनी केक. सो इट गिव्स दैट मोर फजी एंड कैरेमली फ्लेवर टू द ब्राउनीज या केक अगर आप यूज कर रहे होते हो. एंड वो जो ब्राउन डार्क साइड अच्छा ब्राउन कलर भी आ रहा होता है वो भी हेल्प करता है from the brown sugar. So 1 cup sugar, 2 eggs, 1 yolk and 1 cup chocolate and ½ cup butter.
तो मैं पहले शुगर और एग्स को बीट करने के लिए रखने लगी हूँ। ये रहा मेरा बीटर, उंगली पहुंच गई सही जगह पे, यस। ये वहाँ पे बीट करने लगी हूँ और फिर इसके अंदर हम चॉकलेट ऐड करेंगे। Okay. और इसी के अंदर मैंने ऑयल भी डाल दिए और ऑयल मैंने यूज किया 1/4 कप। जबरदस्त। फ्रॉम योर रेसिपी मुझे लग रहा है कि आपने बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी क्रैक कर लिया, बिकॉज इसमें कुकिंग चॉकलेट भी है एंड देन यू नो द ब्राउन शुगर, तो इट विल जस्ट गिव इट द बेस्ट टेक्सचर। जो कि मैं हमेशा सोचती थी कि ये ऐसा टेक्सचर कैसे आता है कि थोड़ा gooey भी होता है एंड यू नो चॉकलेट भी आता है और थोड़ा कैरमलाइज्ड भी आता है। फैट कंटेंट आ रहे हैं ना, वो उसके थ्रू आ रहा होता है। तो जितना इसमें बटर भी है, ऑयल भी है, एग योक इज एन एडिशनल फैट कंटेंट जो ऐड हो रहा है। फिर कुकिंग चॉकलेट के अंदर फैट होता है, जो चॉकलेट होती है उसके कोको बीन्स के अंदर इट हैज फैट कंटेंट। So the fat content and the sugars, they add that fudgy texture to the brownies. फ्लावर कम होता है और चीनी और ऑयल बटर का रेशियो ज्यादा होता है। Oh. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है आपका? Yeah, we are talking about NUST US chapter के साथ NUST fundraising campaign चल रही है. So I, being a graduate of NUST, I'm talking about that. And Anam is my junior from NUST. We work together and हम लोग brownies बना रहे हैं. So it's for NUST. और हमने इसको इस टाइम पे इसलिए भी रखा था सो दैट हम इफ्तारी के बाद बनाए ब्राउनीज। और ये ना हो कि लोग हमें यूएस में बोले कि ये रोजा रख के क्यों आप लोग इतने मजे की चीजें बना रहे हैं। So Ilma is also here. क्या हाल है? It's so good to see you, Ilma. So tell me, Anna, what was one of the fondest memories you have of NUST? Oh my God, there are so many, Fatma Baji. ये तो एक I think I can write a book on it. लेकिन we did so many silly things और नस्ट के अंदर पूरा जो 4 years थे they are so memorable. It seems like कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अरसा हो गया और कभी कभी लगता है कि बिल्कुल जैसे कल की बात हो। Oh my God, मुझे नस्ट से ग्रेजुएट हुए हुए I think मैं 2006 में ग्रेजुएट हुई थी and it is 21, कितने 16 years होने वाले हैं, 15-16 years हो गए। And मुझे ऐसा लगता कल की बात थी, लिटरली कल की बात थी that we were there और मैं चॉकलेट केक बना के लेके जा रही हूँ and everyone was like आज फातिमा बना के लेके आई है, सारे याद हो, सारे याद। Yeah, I remember that whenever you used to bake और हम सारे तो जो है ना वो even after when you were working and you used to bake or bring something, तो हम तो सारे ही वो हो जाते थे ना कि फातिमा जी brought something. आया और किचन में पड़ा हुआ और वो कब ऊपर आएगा और कोई, मैंने नहीं कहूंगी कि काम कर लो और वो डॉक्यूमेंट बना के नहीं बना और वो हुआ। तो I think नस्ट के बारे में जो है वो एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन लोगों को बहुत ज्यादा है कि वहां पे शायद बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है और बहुत ही ज्यादा लाइक कॉलेज एटमॉस्फेयर है, उस तरह का यूनिवर्सिटी एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होता है। लेकिन I totally disagree with that. We were disciplined a bit, लेकिन we really enjoyed everything और and we really enjoyed breaking the rules as well. क्योंकि जो मजा थोड़ा सा वो रूल्स तोड़ने में होता है, अगर वो रूल्स हो ही ना इन प्लेस तो फिर वो आपको वो वाला एलिमेंट ऑफ फन जो है वो नहीं आता। I know, and I think your batch, जो students in your time they were there, that was one of the best times. इनके साथ मुझे भी बहुत मजा आया था काम करने का, इंटरेक्शन करने का, and इनका ना बिल्कुल वो वाला गैंग था, पार्टी टाइप गैंग। इधर ये इवेंट, वो इधर हर जगह पहुंचे हुए हैं, सब चीजों में सबसे आगे हैं। Always so good, you know, interacting with एक ग्रुप ऑफ पीपल कि अच्छा इन्हें कोई काम कह दिया एंड आई हैव टू यू नो टेंशन फ्री हो गई कि अच्छा मैंने इन्हें कह दिया, दे विल गेट इट डन। तो हमेशा मजा आता था इनके साथ काम करने में एंड गॉसिप्स लेने में, कौन कर रहा है। या ट्रू। उस टाइम एक फनी बात बताती हूँ, ड्यूरिंग दैट टाइम नस्ट के अंदर यू वर नॉट अलाउड टू वेयर शॉर्ट शर्ट्स, और तब फैशन भी था शॉर्ट शर्ट्स और पटियाला शलवार और बेल बॉटम और इस तरह के, उस टाइम पे फैशन चल रहा था।
but it was not allowed. नस्ट में ना रूल से पूरा एक आयन आया था नस्ट से कि you are not allowed to wear short sleeves and decent clothes आपने पहने और पता नहीं क्या क्या. So I being the female administrator अपने स्कूल के अंदर, मुझे सर ने बुला के कहा कि now you have to get it implemented, and I was like क्या to go after the kids now and check their कपड़े के उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए. And it was so funny that he said कि अच्छा तुम अगर नहीं कर सकती तो फिर we will do it. And I was like, no, I will do it, because when you guys will go after the girls, वो एक और ही मसला बन जाता है ना. Yeah. कर देती थी and they were like आप हमारे कपड़ों पे क्यों बात कर रहे हैं ये वो. Yes. Yes, and I remember that you arranged a seminar for it. और फातिमा बाजी ने जो है वो पोलाइटेस्ट पॉसिबल वे में सब लड़कियों को कन्वे किया था कि प्लीज यू नो. Seminar, there was this, I called a seminar, जब मुझे ये कहा गया ना कि मुझे ये काम करना है, तो I called a girls seminar पूरा. This was the first time a girls seminar was happening. सारी ट्रांसपोर्टेशन और उस दिन लेट घर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चली. अब सारी लड़कियां सेमिनार हॉल में बैठी और लड़के बाहर खड़े. It's like हो क्या रहा है या क्यूरोसिटी जो थी ना वो उस टाइम कि हो क्या रहा है कि लेकिन बाहर निकली और बाहर बस में गई, सारे मेरे ऊपर चढ़ गए ना, आप कर क्या रही थी, आप क्या बातें कर रही थी. तो वो, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं सबको कहूंगी क्या ना और कैसे समझाऊंगी और क्या करूं. और तब ये भी था कि भाई कोई किसी लड़की के पास ना बैठे, किसी को हाथ ना लगाए, कोई हाथ में हाई फाइव ना करे, मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें थी. एंड but that was fun. और मुझे याद है मैंने तो कोई एक्सट्रीम शुगल तरीके से सबको गाना खुदा के लिए ऐसे नहीं करो. I remember it थे कि मुझे आके रिपोर्ट देते थे. कोई ना आता था मेरे कमरे में आके मुझे कहता था आपने उस लड़की को देखा है, उसने इतनी सी शर्ट पहनी. and I remember कि हम जो हैं हम फातिमा बाजी से डरते भी बहुत थे and we were also very close to her. तो हमें ये भी होता था कि ओके यू नो थोड़ा सा डरना भी है फातिमा बाजी से, यू नो कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, या यू नो कुछ हो ना जाए. Obviously इस प्लेटफॉर्म पे nobody knows about me कि नहीं भी डांस. But it was very very good time. मुझे मतलब नस्ट has always been like a home to me. और अभी जब मैं पाकिस्तान गई तो I went to नस्ट 2 दफा गई and जितने लोगों से खड़े खड़े मिल सकती थी मिली. So it was so good to see those walls, walking on those lobbies, and you know एकदम हर चीज मुझे struck back करी थी कि हमने यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स गालास हुए, ओरिएंटेशन सेरेमनी, पता नहीं क्या क्या हमने किया हुआ वहाँ पे. बिल्कुल. इवन मैं भी जब पाकिस्तान गई आई विजिटेड नस्ट बिकॉज आई डोंट नो अगर बाकी लोगों की यूनिवर्सिटीज में उनको इस तरह की एफिलिएशन होती है या नहीं होती, लेकिन नस्ट के साथ हमें ऐसा लगता है कि वी जस्ट गो बैक टू आवर सेकंड होम. तो वो हम जब पाकिस्तान ट्रिप पे जाते हैं तो बेशक हम थोड़ी देर के लिए जाएं, लेकिन वो जाना जरूर होता है. नस्ट आई नो. एंड अगर किसी ने नस्ट का कैंपस देखा है जो नया बन गया है, मैं तो अभी 4-4.5 साल बाद गई और मैं ऑन कैंपस रह चुकी हूँ 2 साल नस्ट के अंदर. सो वो सारे दरख्त जो हमने खुद लगाए हुए थे वहां पे, ट्रू हमने अपने हाथों से वहां पे दरख्त लगाए हुए, एंड दे वर लाइक almost my height now. So it was so nostalgic to see कि वो roads और pathways और garbage bins हर जगह इतनी कोई ऐसे लग रहा था आप किसी यूएस की यूनिवर्सिटी के अंदर हैं इस वक्त वहां पे. So I felt so happy कि यार this is my university. And then there was a riding club in Nash now. There's a big gymnasium and a swimming pool. Oh my God, that was the thing to see in Nash right now. Yeah. Very happy. मुझे और हम we are one of the lucky ones जिन्होंने ओल्ड कैंपस भी देखा, फिर न्यू कैंपस भी देखा, और वो ट्रांजिशन और फिर न्यू कैंपस की ग्रोथ भी देखी. तो वो जो मतलब मैं भी अभी जब गई एंड आई सॉ दोस ट्रीज एंड एवरीथिंग, इतनी ग्रीनरी अब हो गई है नए कैंपस में. व्हेन वी मूव देयर तो आधा तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, खाली था. तो आई वाज आल्सो टेलिंग माय फैमिली कैफे विद इन द नस्ट खुल गए, ग्रोसरी स्टोर्स और कैफेज एंड it's like a complete community now. Yes. तो इतना मुझे मजा आया ना. एंड मैं जब नस्ट में पढ़ी थी, we used to be in Chaklala Scheme 3. I think you were also on that campus. Yeah, I was there for 2 years. सड़कों पे लिटरली कैंप
Going here in Rawalpindi, लाल कुर्ती और यहाँ चकियाला स्कीम थी, ये हमारे घर होते थे, हमने यहाँ पढ़ा हुआ है. True. So when I started working during that first year, we moved to NUST H12 campus and it was a huge transition और बहुत ही मजा आया है ना. और मतलब एंडलेस बातें हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा why is there around जो हमें नस्ट की बातें याद करा सके. Yeah, और even फातिमा बाजी, when we were in चकलाला campus, तो उसके भी अपने मजे थे. Going to the you know that bakery, अयान बेकरी नाम था. And हर रोज सुबह अयान का डोनट खाना was like a must. लाल कुर्ती जाना, टपली कबाब इन कबाब, वो नान लेना is a must. yeah. हमारी ना वो हाईएस्ट वैन्स के अंदर हम लोग सारे घर वापस जाते थे, सब पूरी कैंपस के अंदर हाईएस्ट वैन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए घर पे चलती थी. और बस के अंदर सारा एक ग्रुप बन जाता था, डिफरेंट बैच के बच्चे हैं, आपस में सबकी इतनी दोस्तियां हो गई हुई. और हमारी हाईएस्ट वैन्स की आपस की ट्रीट्स होती थी कि अच्छा आज इस बच्चे की ट्रीट है, इसने चपली कबाब खिलाने, इसने समोसे खिलाने. तो Exactly. और फिर वो अली भाई के दही भल्ले थे. अली भाई तो हमारे इतने को मशहूर. तो and even this small cafe that we had, और उसमें जो चाय पराठा मिलता था. मुझे तो I never used to have tea before that, और मुझे ऐसी चाय की आदत डली वहां से, नस से. और वही जो आमना, आमना, तो आमना ने मुझे चाय की आदत डाली ना. हर क्लास के बाद we are going for a cup of tea. तो मैं उसको शुरू में टाइम में सारे बैठे होते थे, फारिग हो गए, चलो जी चाय पीने चलो. और वो चाय फिर किसी, और हमेशा जो बच्चा जाके कैंटीन पे ऑर्डर देगा ना, बिल उसी के खाते पे खुलता रहेगा. True. नहीं दिए, बैंक में पैसे देते थे, पूरी डायरी भरी हुई है वहां पे, और चाय पी रहे हैं, चाय समोसे. Oh my God, we had so much fun. And Ilma, she met Ali, my Ali. Yes, you did. और Ambreen is here. Hello, Ambreen. Hi, Ambreen, I think she's in Australia. Yes. Yeah, she's in Australia now. और I don't know if you remember or not. हम बीच में I don't know what happened, कोई प्रोजेक्ट था या क्या था, तो हमने वो स्कीम 3 वाले कैफे को चलाने का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमारी क्लास में. That was such a fun experience, क्योंकि कभी क्लास में से कोई ड्यूटी दे रहा है कैफे में, कभी कोई ड्यूटी दे रहा है, एंड हम खुद ही सारा कुछ लेकर खुद ही खाए जा रहे हैं. सही बात है. और इतनी कोई हमारी स्टूडेंट काउंसिल्स की लड़ाइयाँ होती नहीं, ऐसी कोई गॉसिप उससे लड़ाई, उससे लड़ाई. Yeah, and at that time वो लगता था कि भाई बहुत सीरियस है ये मसला, दुनिया का सीरियस तरीन मसला है. तो यही जिंदगी हमारी, यही सारी टेंशन है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं. Yeah, लेकिन now looking back इतना वो लगता है ना कि यार हम कैसे छोटे छोटे मसलों पे जो है वो इतने परेशान और इतने इमोशनल हो जाते थे. हम मैच्योर हो गए, और हमसे ज्यादा तो कोई मैच्योर है ही नहीं ना. मतलब वी हैव कम टू द लेवल, बस सब कुछ खत्म हो गया है. एंड नाउ दैट, अब कोई, मैं जब अब छोटे बच्चों से, उस टाइम के जनरेशन में किसी से मैं बात करती हूँ, आई एम लाइक कोई बात नहीं बेटे, अभी आप आगे I remember कि हमारी जो है वो फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन थी, और डेमो के दौरान जो है, क्योंकि आई वॉज डूइंग अ हार्डवेयर प्रोजेक्ट, तो डेमो के दौरान एक हार्डवेयर का पीस जो है वो चलना बंद हो गया. तो हम, मी एंड माय प्रोजेक्ट पार्टनर, वी वर लाइक सो अपसेट कि जिंदगी खत्म हो गई है, और अब हमारा पता नहीं ग्रेड क्या आएगा, और ये और वो, और बहुत ही एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हुआ था. एंड आई रिमेम्बर कि जो हमारी को एडवाइजर थी, शी गेव सच अ गुड एडवाइस. शी सेड कि दिस इज नथिंग, जिंदगी में इससे बड़े बड़े मसले आएंगे, और तुम लोग इस पे इतने परेशान हो गए हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ. ऑल्दो इट डिडंट इवन इफेक्ट आवर ग्रेड दैट मच, लेकिन इतनी हमें स्ट्रेस थी और इतनी टेंशन थी. तो उस टाइम मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई. मैंने कहा यार ये क्या बात करनी है, मतलब पूरा ग्रेड इफेक्ट हो गया है, जीपीए इफेक्ट हो जाएगा, पता नहीं क्या होएगा आगे. लेकिन स्टूडेंट अनम का जीपीए बहुत अच्छा था, मेरा बड़ा एवरेज जीपीए था. अना वाज लाइक अ ब्राइट स्टूडेंट वाला बच्चा था हमारा.
तो अब नाउ थिंकिंग बैक आई थिंक यार वाकई में हम फजूल की टेंशन जो है हमने पाली और ऐसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन उसको बनाया हुआ था, ऑल्दो इट वाज नथिंग एट ऑल, लेकिन उनकी बात जो है वो मेरे अभी तक जो है ना इट एकोज इन माय हेड के अच्छा टाइम इतने टीचर्स के साथ, और कुछ टीचर्स अभी तक वहाँ पे हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ चले गए हैं, बट वी हैड सच फाउंड मेमोरीज ऑफ एवरी सिंगल पर्सन. मैं अभी देख रही थी रिसेंटली सरित शाम को, he is one of the persons जिन्होंने he has spent 20 years in NUST. उनको भी award भी मिला इस चीज का. Yeah. And he has been there since the beginning of the university, जो हमारा Seeks campus था, and managing the students, their academic calendars and हर चीज students के साथ. So like एक life span होता है, 2 decades spending at the same workplace and doing so much good. So it was so good to see him जब मैं भी गई वहाँ पे. तो yeah, माशाल्लाह सरे तशाम तो मतलब people who are from Sikhs would know कि he is a celebrity over there. उनके बगैर तो कोई स्पोर्ट्स गाला कोई कुछ भी जो है वो उसका फन एलिमेंट कंप्लीट ही नहीं होता था. Okay, so this is the texture of the brownies. मैंने एग्स को बीट करने के बाद उसके अंदर चॉकलेट और जो बटर को बेल्ट किया था वो भी डाल दिया, और इसके अंदर मैंने हाफ कप फ्लावर और 1/3 कप कोको पाउडर भी डाले. सो एवरीथिंग इज मिक्स्ड नाउ. जबरदस्त. Pour it in the tin. मेरा क्वेश्चन है आपसे फातिमा बाजी, how do you resist not tasting it? It looks so tempting right now even. यार ये इसको जो चखने वाला काम है ना इस प्याले के अंदर, और स्पैचुला को चखने वाला काम वो तो अब जोया करती है, और ब्राउनीज बनने के बाद खाना है वो वी डू इट. एक्चुअली मैं आज सुबह फार्मर्स मार्केट पे भी लेके गई, तो वहां पे जो मेरी अब उन लोगों से इतनी दोस्ती हो गई है, तो देवर 5-6 पीसेस जो बच गए ना, दे वर नॉट सोल्ड. तो फिर मैंने खोला, मैंने कहा आए सारे मिलके खाते हैं, तो वो तो वहीं खड़े खड़े सबने खा लिया ना. माय बाइट. यार I so wish that you were here closer to me and I could taste your food, क्योंकि कल भी मैं वो देख रही थी आपकी स्टोरीज पे ऑल द बेक्ड गुड्स, और वो इतनी टेम्पटिंग लग रही थी, और जैसे वो लेमन टार्ट, और ये मतलब वो तो यहाँ पे मिलता भी नहीं है ना, ये पाकिस्तानी लेमन टार्ट, और लेमन टार्ट्स तो यहाँ पे मिलती भी नहीं है ना. और आज मैं फार्मर्स मार्केट पे जब दिस इज द सेकंड वीक मैं लेमन टार्ट्स लेके गई ना मार्केट पे, and everyone was so happy. They were like, this is what is this, and I'm like, you have to eat it, then you will know what is this. लेकिन वैसे फातिमा बाजी I really appreciate. Can you hear me? Pause हो गया था. Sorry. Oh, okay. Yeah. So I was saying कि जितनी research food blogging में आप करती हैं, I have not seen anyone doing this sort of research in food blogging. मतलब एक एक डिश को जो है उसकी क्या हिस्ट्री है, वो कैसे स्टार्ट हुई. You are truly representing the Pakistani food like in the way it should be presented to the audience here. Yeah, thank you so much. I think with time you get that interest build करने की बात है. So एकदम हो गया. फिर I think it also happened क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर आ गई, and I think everyone living बाहर they can relate to this more कि बाहर आके आपका ज्यादा दिल करता है आप पाकिस्तान के लिए कुछ करो. वो क्या कहते हैं जो फीलिंग होती है ना ऑफ बीइंग पाकिस्तानी एंड गिविंग बैक टू पाकिस्तान, वो यहाँ से यहाँ तक चली जाती है. So I wanted to That do is so true. Also, so I think this is one thing that I just grabbed. लेकिन I think आप एक बंदे को जो है वो इसमें क्रेडिट देना भूल रही हैं. मुझे लगता है आपको रिसर्च की आदत जो है ना वो सर अली ने डाली है. Honestly, one of the good habits that you pick from him. One of my biggest critiques also. Oh God. So okay, मैंने brownies इसमें डाल दिए, and one of the important thing that you have to do after putting the cake in the tin, especially brownies, कि आपने इसमें से air bubbles निकालने होते हैं ताकि वो जो crackling surface बनी है वो अच्छे से बन सके. तो आप इसको ना टेप पे जरा जोर से 2-3 दफा इस्तेमाल करें ताकि
जितने एयर बबल्स हैं सबसे वो निकल जाए। मैंने 350 फ़ारेनहाइट पे ओवन को गर्म किया और मैं इसको 12 से 14 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। आप आई बॉल करके देख सकते हैं कि टॉप से सरफेस से वो पक गया कि नहीं पक गया। और उसके ऊपर जब ये ओवन में होता है उस वक्त क्रैकलिंग सरफेस इतनी ऑब्वियस नहीं होती, लेकिन बनना शुरू हो जाती है। फिर जैसे कूल डाउन होता है और ठंडा होना शुरू हो जाता है, फिर वो मोर ऑब्वियस हो जाती है और आपको नजर आ जाती है कि इट्स देयर। सो आई एम गोइंग टू पुट इट इन द ओवन नाउ। दिस इज व्हाट इट इज। जबरदस्त। इसके साथ तो एक जबरदस्त सा चाय का कप हो और ये ब्राउनीज हो और आप हम यही खाएंगे। तो फातिमा माजी, आपने ये जो क्वांटिटी ली है 1 कप ऑफ फ्लावर एंड एग्स, तो ये हाउ मेनी ब्राउनीज डज इट मेक? कितने लोगों के लिए इट्स इनफ? दिस इज 8 इंच टिन जो है, तो इसमें से 9 ब्राउनीज बन जाती हैं, वो स्क्वायर 2x2 वाले साइज के इस तरह। सो इट्स 8 इंच टिन और बस 2 ही लोग खा सकते हैं, 2 लोग और कुछ केसेस में तो एक ही लोग खा सकते हैं। So yeah, whatever like us today, na, when I came from the market, Mama, are there any brownies left? And I was like, no, we'll bake it रात में घर जाके. So we are going to treat it tomorrow. Yeah, और बच्चे तो बहुत ही ज्यादा enjoy करते हैं. My little one, she's only 3.5, और वो भी जो है उसका यही होता है कि उसकी 1-2 दफा प्री स्कूल में जो है, अब वर्चुअल जो था सारा कुछ, तो वर्चुअली जो है वो टीचर ने बता दिया कि जी वी विल हैव अ पंपकिन ब्रेड बेकिंग एक्टिविटी, और एक दफा कुकीज की एक्टिविटी हो गई, तो ऑब्वियसली आई हेल्प हर विद एवरीथिंग। सो नाउ शी इज सो इंटरेस्टेड इन बेकिंग कि उसको बस बैठे बैठे होते हैं, मम्मी लेट्स बेक समथिंग, लेट्स बेक। Yeah, so you won't believe, she will open the fridge, bring the आटा out और आटा रोटी बनाना शुरू कर देती है बैठे बैठे। लेट्स गो एंड मेक अ रोटी, लेट्स गो एंड मेक अ पराठा। मामा हर वक्त तो नहीं। या मैं उसको कह रही होती हूँ, मैं आई एम जोकिंग, आई जोक विद माय हस्बैंड, ऐसे यार ये इसको बेकिंग बेशक आए ना आए, इसको हम चाय बनाना फौरन से खा देंगे सो दैट जिंदगी में कुछ तो आसानी हो। ना मैं अली से हंस रही होती हूँ, मैंने कहा यार ये बच्चे थोड़े बड़े कब होंगे ना कि मतलब हम इन्हें अपना छोटा बना सके। खैर वो इनको तो बहुत बना लिया, पानी लाओ, ये करो वो करो। तो अभी जब मैं पाकिस्तान भी गई ना, आई आस्किंग जोया टू डू सो मेनी थिंग्स के जाओ ये करके लाओ वो करके लाओ, तो अम्मी और अब्बू ने तुम इसको इतना घुमा रही हो, बच्ची है रहने, तो मैंने कहा काम कर लेते, लेट हर डू इट। अब स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स को ज्यादा फील होता है ना, क्योंकि वो लोग इतने अरसे बाद मिल रहे होते हैं, तो वो वैसे ही बहुत सॉफ्टीज हुए हुए होते हैं। मैं तो अपनी मामा को ये कहती हूँ, मैंने कहा मामा आप इतनी ज्यादा डिसिप्लिनेरियन थी हमारे टाइम पे, एंड नाउ यू हैव बिकम सच अ सॉफ्टी कि नहीं नहीं दे दो, करने दो, लेट हर डू इट। तो एकदम चेंज हो गए ना, सब कुछ खत्म ही हो गया बिल्कुल। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, मैंने तो बहुत डांट खाई है। But it was so good going back home, or when you see your parents playing and giving love to your children. ये तो feeling ही कोई और है ना. So the way we enjoy it, I think our parents also enjoy it कि आपके बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं, सब कुछ. So yes, phases of life, I think we should enjoy every phase of life. जब आप college, university life में enjoy it to the full, वो memories जिंदगी में दोबारा कभी नहीं बन सकती. And when you are married, you have kids, ये एक adult lifehood है, आप इस adult life को आप एक अलग तरीके से enjoy करते हो. So yes, I think ये responsibility तो part and parcel है. अब तो ये खत्म नहीं हो सकती, अब चाहे कुछ भी हो जाए. Yeah, that is so true, especially talking about college and university. Now I thank God so much कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जो है वो सिर्फ जीपीए पे और क्विजेस पे फोकस नहीं किया. आई एक्चुअली एंजॉयड इट, क्योंकि वही हम आपस में भी फ्रेंड्स कुछ अर्सा पहले वी वर हैविंग दिस डिस्कशन, तो वी वर सेइंग कि शुक्र है कि हम लोग सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करते, बिकॉज अगर हम सिर्फ जीपीए और क्विजेस पे ही फोकस करते रह जाते तो हमारी कोई मेमोरीज ना होती लुकिंग बैक. Now we have so much memories to, think about and talk about. और वो साथ with the university or college life में, that it apart from education, वो आपकी personality develop कर रहा होता है.
So the student development, the personality development, ये traits आपको extra curricular activities से ही आते हैं campus में. And when you interact with other people, हर एक का मजाज different और हर चीज different. So you learn so much when you interact with different people. और फिर that helps you in your career also आगे. So I think it has been a phenomenal journey for me also, and I think equally for you also. Yes, true. पूरी I think हमारी जो personality shape up और groom हुई है वो नस्ट में ही हुई है और उसके बाद भी हुई है, लेकिन I think वहां से एक बहुत अच्छी foundation set हुई थी. पहले तो उससे तो हम बिल्कुल we were like high school students जिनको कुछ ज्यादा पता नहीं था कि किस तरफ जाना है जिंदगी में, लेकिन नस्ट ने हमें बहुत ना सिर्फ ये कि प्रोफेशनली ग्रूम किया, लेकिन ये कि ओवरऑल ऑल राउंडेड जो हमारी पर्सनालिटी बनी वो उनकी वजह से ही बनी. Yes. Anam, this brownies is going to take 14 more minutes to bake. So we can end this live session and I'll show the result in my stories, and we can link the account details also. I'll request everyone that please participate in this fundraiser for NUST scholarship programs in whatever capacity आप donate कर सकते हैं NUST में education को support करने के लिए. Please do it. We are playing our part, and I invite all my friends and family to be part of this campaign also. Yes, thank you so much, Fatma Baji. Thank you so much for having me there, and thank you so much for taking time for this cause. और प्लीज मैं भी एंड में सबसे एक दफा दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 टेक 2 minutes आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल्स एंड डोनेट टू नस्ट. इवन आप जो हैं अगर $10 भी देते हैं, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ बिग डिफरेंस इन समवंस लाइफ. आप लोग जो हैं ये नस्टियन यूएसए के अकाउंट को जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां से सारी डिटेल्स कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन इनबॉक्स अस एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चंस. आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक इज इन द बायो एंड यू कैन मेक डोनेशंस ओवर देयर. और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एक्चुअली फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर कि यूएस बेस्ड ये रजिस्टर्ड है, सो इसलिए अगर आप कुछ भी डोनेशन करते हैं तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा. So it also it's a very beneficial thing for you. So please do it. And if you have any questions, just reach out and we will get back to you. Thank you so much, Fatma Baji. Thank you so much. I'll save this live and we can reshare it with everyone later on also. And the brownies recipe will also be saved in it. वो तो मस्ट है, वो तो आई थिंक दैट्स द चेरी ऑन द टॉप कि हम अच्छी बात भी कर रहे हैं और इतनी अच्छी रेसिपी भी बता रहे हैं लोगों को. Yeah. So we should do this more often. हम सबको ना different alumni को बुला के ना उनके साथ खाना पकाना चाहिए. कौन सबसे अच्छा भुना खाना बनाएगा? यार वाकई में, because it's so much fun and you know I cannot even believe कि हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं. I actually thought कि सिर्फ 15-20 मिनट हुए. No, actually we should start doing this live. और अब तो स्क्रीन पे 4 लोग इकट्ठे बात कर सकते हैं ना लाइव सेशन में. We should do it with SN and Sundas. Should invite the president of NUST Association and उनके साथ start करते हैं. That is a great idea. We should definitely do it. To the president and first lady of NUST USA chapter. I totally agree. Or I think Sundas also has a food blog of some kind, so I think she would be really interested in doing that. और फातिमा बाजी, Sundas के अलावा और भी बहुत सारे Nustians हैं that are really interested in collaborating with you. We have some Nustian bhabis that are running food blogs. तो उनके साथ भी मैं आपको connect कराऊंगी. Definitely, I would love to know about everyone and always there for so much to learn from each other. So please let सबके साथ we can do it together. I'm telling you, 4 लोग तो आराम से बात कर सकते हैं ना, so it should be really fun. We can invite Ali also. बहुत मजा आएगा. Yeah, I think a couple baking or cooking session would be fun. Yeah, Ali ने वैसे भी मेरे साथ bake off करना है अभी, cook off तो let's see वो कब होगा. Yeah, waiting for that. I saw that post on your anniversary, so I'm waiting for that. Chale, thank you so much, Fatma Baji. I really appreciate. And thank you so much for the opportunity. I truly NUST is like a home to me, and anytime for NUST, I will always be there. Thank you so much. Thank you so much, Fatma Baji.